Hello and welcome, my dear students. Today we are going to study the last topic of this chapter, that is drug and alcohol abuse. Every year at least one question comes from this topic in your NWT exam. So it is one of the most important topic for you all. But both of these topics, that is drug and alcohol abuse, are very harmful for your health but very important for NEET. See, this topic is included in your NCERT so that you should know the harmful effects of these things in your body and how you can aware others about its harmful effects and how you can protect others as well. First of all, tell me, what do you mean by drugs? See, drugs are any chemicals. Okay, any chemicals that have some biological or physiological effect in our body. जब हम बीमार पड़ते तब हम मेडिसिन लेते हैं, that is also a kind of drug only. But when that particular drug is taken or medicine is taken more than its required amount, then it will have some harmful effects in our body. तभी हम बोलते हैं कि drug abuse. ठीक है, जब भी कोई मेडिसिन या ड्रग उसका रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं, एट दैट टाइम सर्टेन काइंड्स ऑफ physiological changes occurs in our body and it affects our central nervous system as well. That effect is known as drug abuse. So let us see. Drugs are chemical substances which has biological effects on human and animal or physiological effect. Now the most common drugs that we will be discussing in this particular topics are opioids, cannabinoids and coca alkaloids or cocaine जिसे कहा जाता है. So let us see them one by one. All of them are derived from flowering plants. There are different flowering plants from which each of them are being derived. Let us see them one by one. First of all, opioids. Opioids are the first commonly used drugs by people. See, let me zoom this picture for you. Okay, I hope you are able to see this. See, this is a plant known as poppy plant. Okay, poppy plant. Our scientific name is Pepper somniferum. You can see these are the seeds of poppy plant. Okay, इसे seed कहा जाता है. These are its flowers. और यहाँ पे आप कुछ देख सकते हो, milky substance. This is known as latex of poppy seed. ये seed का latex है. From this latex of poppy plant, a drug called morphine is being prepared. Clear? So, opioids are the drugs which bind to opioid receptors in the central nervous system and gastrointestinal tract. So, opioid वो ड्रग्स होता है जो कहाँ पे बाइंड करते हैं, दे बाइंड टू ओपियोड रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, हमारे ब्रेन, दैट इज ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, मतलब जो हमारा बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनल है वो एलिमेंट्री कैनल में जाके वो अफेक्ट करता है. सम ऑफ द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ओपियोड्स आर मॉर्फिन एंड हेरोइन. मॉर्फिन एंड हेरोइन. मॉर्फिन का नाम अगर आप लोगों ने नहीं सुना है, मगर हीरोइन का नाम तो सुना ही होगा, एटलीस्ट इन मूवीज़ में ड्रग्स वगैरह बहुत दिखाया जाता है, स्पेशली इन योर साउथ इंडियन मूवीज़. ओके, सो ऑल ऑफ यू माइट हैव हर्ड दिस टर्म हेरोइन. सो मॉर्फिन इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट, जो मैंने अभी आपको दिखाया है. इट्स साइंटिफिक नेम इज पेपर सोमिनिफेरम. नोट इट डाउन, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. नेक्स्ट इज, उसे किस काम के लिए यूज़ किया जाता है? इट इज़ अ सिडेटिव. इट इज़ अ सिडेटिव एजेंट. सिडेटिव मीन्स इट प्रमोट स्लीप. नींद को प्रमोट करने के लिए ये ड्रग्स यूज़ किया जाता है. ज़्यादा नींद आता है इसे कंज्यूम करने से. सो इट इज़ अ सिडेटिव एज वेल एज ए पेन किलर. पेन किलर, कोई भी
बॉडी में अगर पेन होता है, एट दैट टाइम इट हेल्प्स टू रिमूव द पेन इन द बॉडी एंड इट इज़ यूज्ड टू रिड्यूस पेन आफ्टर सर्जरी. अर्लियर डेज में इसे आफ्टर सर्जरी ही यूज़ किया जाता था एज ए पेन किलर, बट नाउ पीपल हैव स्टार्टेड यूजिंग इन अ बैड वे, in abusive manner. Okay, next is heroin. See, morphine is a naturally prepared opioids, whereas heroin is artificially prepared from और सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड फ्रॉम ओपियोड्स. ओपियोड से हीरोइन बनाया जाता है, ठीक है, जो हम टीवी वगैरह में देखते हैं ना, मूवीज़ में. सो इट इज़ केमिकली इट इज़ नोन एज डाई एसिटाइल मॉर्फिन. ये भी एक गुड MCQ क्वेश्चन है, ठीक है. हीरोइन का और एक नाम दैट इज डाई एसिटाइल मॉर्फिन because it consists of two acetyl group. You can see the chemical structure of heroin in your NCERT textbook. That is not important for you. Now इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट इज़ बिटर, वाइट इन कलर, ऑर्डरलेस मतलब कुछ स्मेल नहीं आता है, क्रिस्टलाइन, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल्स, ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन. जो मैंने अभी आपको बोला, इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय आर्टिफिशियली फ्रॉम मॉर्फिन. एंड हाउ इट इज़ बीइंग टेकन, पीपल इसे कैसे कंज्यूम करते हैं? इट इज़ टेकन बाय स्नोटिंग. स्नोटिंग मतलब क्या है? इनहेल करना, सांस लेते हैं उसका. ओके, आपने देखा होगा ड्रग्स कैसे कंज्यूम किया जाता है. नहीं देखा है तो इट्स वेरी गुड, बट अगर देखा है तो आपको पता होगा हाउ इट इज़ बीइंग कंज्यूम्ड. सांस लिया जाता है थ्रू इनहेलेशन, स्नोटिंग एंड थ्रू इंजेक्शन. इंजेक्शन के थ्रू भी आपके वेन्स में इसको डिलीवर किया जाता है. ओके, सो इसका काम क्या होता है? इट एक्ट्स एज डिप्रेशन एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शन. हर बॉडी फंक्शन को ये स्लो डाउन कर लेता है. अल्टीमेटली इट एक्ट्स एज अ पेन रिलीवर्स. ये उसका की वर्ड है. प्लीज रिमेंबर दिस की वर्ड. ओपियोड्स एक्ट एज पेन रिलीवर्स. पेन को कम करने के लिए ओपियोड्स का यूज़ किया जाता है. नाउ लेट अस सी आवर नेक्स्ट ड्रग दैट इज कैनाबिनॉइड्स. यू कैन सी a cannabinoid plant, okay, that is Cannabis sativa. This is the scientific name of this plant. So this cannabinoids, where they affect the cannabinoid receptors present in our brain. ये direct जाके brain में affect करता है. Some of the common examples of cannabinoids are marijuana, then ganja, hashish, charas. All of these terms I hope you have heard in various movies. सुना ही होगा आप लोगों ने. All these are Hindi terms only. So how it is being taken? कैसे इसको लिया जाता है अंदर? It is taken by inhalation. सांस लिया जाता है, और oral ingestion. ओके, डायरेक्ट कंज्यूम किया जाता है, डायरेक्ट हम अपने मुंह से खाते हैं, बा उसको सांस लेते हैं. दैट इज इनहेलेशन, जो मैंने अभी आपको बोला, स्नोटिंग. ओके, एंड व्हाट इट अफेक्ट्स? इट अफेक्ट्स द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी. अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स आवर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, हार्ट, उसके रिलेटेड आपका जो ब्लड. अल्टीमेटली इट अफेक्ट्स ऑल आवर बॉडी पार्ट्स. नाउ व्हाट आर इट्स हार्मफुल इफेक्ट्स? इट लीड्स टू रैपिड हार्ट बीट. जब हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को वो अफेक्ट करता है, इट लीड्स टू रैपिड हार्ट बीट. नोट इट डाउन, इट लीड्स टू रैपिड हार्ट बीट. हेलुसिनेशन करवाता है. व्हाट इज हेलुसिनेशन? हेलुसिनेशन मतलब ए परसेप्शन ऑफ सीइंग समथिंग बट विच इज़ एक्चुअली नॉट प्रेजेंट. मगर जैसे कि आपने कभी महसूस भी कर सकते हो कि आपको लगा कि यहाँ पे कोई है मगर ओरिजिनली यहाँ पे कोई नहीं है. तो ये जो हेलुसिनेशन का जो टेंडेंसी है, दैट इज बीइंग इंक्रीज्ड बाय दिस टाइप ऑफ ड्रग्स, दैट इज कैनाबिनॉइड्स. Now let us see the third and last type of drugs, that is coca alkaloids or cocaine. So cocaine, also called as coke, is obtained from Erythroxylone coca. This is the scientific name of this plant from which this drug, that is cocaine, is being extracted out. Now वो क्या को अफेक्ट करता है? इट अफेक्ट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर. ये न्यूरोट्रांसमीटर को जाके अफेक्ट करता है. हमें पता है, वी हैव स्टडीड इन अवर क्लास 11 द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर रिलीज्ड फ्रॉम नर्व एंड्स. सो इट अफेक्ट्स a specific type of neurotransmitter known as dopamine. Note it down, note down the spelling, note down the term dopamine. ये कौन से neurotransmitter को affect करता है? Cocaine. It affects dopamine. Now how it is being taken? It is taken by smoking. Smoke करके इसे लिया जाता है, and ultimately it affects our central nervous system and induce euphoria. Euphoria मतलब excitement.
ओके, एक्साइटमेंट, और इट लीड्स टू इंक्रीज एनर्जी, एनर्जी को बढ़ा देता है। किसी भी काम को जब हम इसे कंज्यूम करने के बाद जब करते हैं तो वी फील मोर एनर्जेटिक, ओके, इट गिव्स अस मोर एनर्जी। सो इट इज़ बीइंग मिसयूज्ड बाय सर्टेन एथलेटिक पर्सन और स्पोर्ट्समैन और वोमेन। वो लोग क्या करते हैं कि जब भी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने से पहले दे यूज टू कंज्यूम दिस, एज ए रिजल्ट they feel they are more they have more energy to perform the task, okay, but this is not good. It has certain side effects as well because its higher doses leads to hallucination. अभी मैंने आपको बोला hallucination का मतलब आपको लगता है कि ये चीज़ है मगर वो नहीं है, एक्चुअली में वो नहीं है, मगर आपको लगा कि वो चीज़ यहाँ पे है. So it's write down the definition for hallucination. It is a perception of having seen, heard, touch, tasted or smell something that wasn't actually there, जो actually वहाँ पे नहीं है मगर आपको लगा कि you have experienced or you have faced all those things. Okay, so these are the 3 types of drugs. Now let us see the next harmful substance, that is tobacco. All of you might have heard about this tobacco. Now tobacco are being produced from tobacco plant. So this is a picture showing tobacco plant. Now tobacco में एक हार्मफुल सब्सटेंस प्रेजेंट रहता है विच इज़ नोन एज निकोटीन. आपने सुना ही होगा निकोटीन, जो सिगरेट्स वगैरह में रहता है ना, निकोटीन. इट इज़ वेरी हार्मफुल. It is, you can say it is a toxic substance. So it contains nicotine, which is a stimulant and a toxin. It is a toxin, it is a poisonous substance. How tobacco is being consumed? उसको either chew किया जाता है, चबा के खाया जाता है, जैसे कि आप with you can say most of the people consume tobacco पान के साथ खाते, कोई ऐसे भी खाते, ठीक है. It is chewed or it is smoked like in the form of your cigar, okay, smoked, or it is snuffed. Snuffed is something like smokeless tobacco made from the leaves of tobacco plant. Okay, it is a smokeless tobacco made from the leaves of tobacco plant. And how it is taken? It is taken by inhalation. सांस के थ्रू उसे लिया जाता है. जस्ट लाइक हम लोग प्रीवियस जो ड्रग्स पढ़ा था ना, उसी के थ्रू, उसी के जैसे इसे भी कंज्यूम किया जाता है. सो देर आर मेनी वेज ऑफ कंज्यूमिंग टोबैको. इट कैन बी आइदर च्यूड, स्मोक्ड और यूज्ड एज ए snuff. Now let us see some of the adverse or harmful effects of chewing tobacco. Now you can see a very beautiful picture, isn't it? बहुत सुंदर है ना picture, हाँ? Okay, is very dangerous picture actually. See, chewing tobacco or having a tobacco or smoking tobacco, what are the adverse effects of it? It may lead to increased blood pressure and heart rate, which may lead to death of the person as well. Then lung cancer, because उसका जो निकोटीन जो तार है, it gets absorbed in our alveoli of our lungs and it leads to lung cancer. Then it leads to bronchitis. Okay, bronchitis मतलब आपका inflammation in our bronchi आपने पढ़ा है, do you remember? So it leads to inflammation of bronchi. Then emphysema where the alveolar walls get damaged. Then it affects or it leads to coronary heart disease. Then cancer of throat, then gastric ulcer, cancer of urinary bladder, and then finally it leads to oral cancer. So it has lots of adverse effects. So whoever is, or any of you, if you have a habit of smoking or chewing tobacco, you should quit it from now as well. Okay, और अगर आपको पता है कि आपके आसपास या आपके कोई फैमिली मेम्बर ऐसा करते, either they smoke or chew tobacco, you should stop them from doing it. Okay, next let us see what is the reason or what motivates our youth towards this drug or alcohol abuse. Usually आपने देखा होगा आपके सराउंडिंग या सोसाइटी में यूथ, जो टीनेजर्स या यंग पीपल जो है, वो लोग ही ये ड्रग या अल्कोहल एब्यूज़ में ज़्यादा गिरते हैं. तो व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट मोटिवेट्स, किस कारण की वजह से ये यूथ ज़्यादा मोटिवेटेड होते टूवर्ड्स ड्रग और अल्कोहल? द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न इज़ क्यूरोसिटी. ओके, जब एक लड़का या लड़की, देयर इज़ नो डिफरेंस,
बोथ दे कंज्यूम, ओके। जब एक वो लोग जब टीनेज में आते हैं, दैट टाइम देर इज़ मोर क्यूरोसिटी इन दैम। वो लोग जानना चाहते हैं कि इसका हाउ इट टेस्ट, और इसे खाने के बाद क्या होता है, एंड ऑल दो थिंग्स। सो आउट ऑफ क्यूरोसिटी दे ट्राई दिस स्मोक और ड्रग्स एज वेल। नेक्स्ट इज एडवेंचर एंड एक्सपेरिमेंटेशन। दे वांट टू एक्सपेरिमेंट कि इसे खाने के बाद क्या होता है, लेट अस सी। दे वांट टू एक्सपेरिमेंट बिकॉज इट इज़ देयर एडोलसेंट स्टेज। सो उसी स्टेज में क्या होता है, एक इंडिविजुअल में बहुत सारे चीज़ों को एक्सपेरिमेंट या ट्राई करने का बहुत शौक चढ़ा हुआ होता है। नेक्स्ट, पीयर प्रेशर। पीयर मीन्स फ्रेंड्स, ओके। फ्रेंड्स प्रेशर करते कि नहीं, टेस्ट करके देखो, अच्छा है, खा के देखो, इट्स वेरी गुड, ट्राई इट और समथिंग लाइक दैट। और सोशल हैबिट, आदमी लोग लगते हैं कि नहीं, मुझे सोसाइटी में रहना है, देन आई हैव टू स्मोक लाइक माई अदर फ्रेंड्स और द पीपल इन द सोसाइटी। सो इट्स और दे फॉर्म ए हैबिट। कोप अप विद द स्ट्रेस। बहुत लोगों को लगता है कि मेरा लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, सो इन ऑर्डर टू ओवरकम विद द स्ट्रेस, इफ़ आई स्मोक और इफ़ आई ड्रिंक अल्कोहल एट दैट टाइम, मे बी ये स्ट्रेस चला जा सकता है, ओके। सो इन ऑर्डर टू कॉप अप विद द स्ट्रेस ऑल्सो पीपल स्टार्ट टू हैव drugs or alcohol. Next is they think it's very fashionable, they look very cool if they drink it, they look very cool. You can see a picture where certain friends are doing party and having alcohol, certain drinks, okay. People think that it is quite fashionable and it's quite trendy and they look very cool, but actually में ऐसा कुछ नहीं है. It has certain harmful effects. So what are the immediate effects of drug or alcohol abuse? फर्स्ट इज़ रिकलेस बिहेवियर. एक पर्सन जब अल्कोहल कंज्यूम करता है, हिज बिहेवियर इज़ वेरी बैड एंड विच लीड्स टू वायलेंस. आपने देखा होगा कि बहुत सारे ड्रंकर्स के फैमिली में बहुत झगड़ा होता है, ओके. इट लीड्स टू वायलेंस इन द फैमिली. देन नेक्स्ट इज द पर्सन में गो टू कोमा एंड अल्टीमेटली उनका डेथ भी हो जाता है ड्यू टू सेरेब्रल हेमोरेज, ब्लड क्लोट हो जाता है ब्रेन में. देन नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी एंड हार्ट फेलर्स. So ultimately a combination of drug or their intake with alcohol, drug as well as alcohol, they will lead to death of the person. So both of them are very dangerous, and if any of you know anybody consuming them, you should make them aware and you should try your best to stop this abuse फ्रॉम, मतलब क्या बोलूँ, लाइक आपको खुद भी ट्राई करना है नहीं कंज्यूम करने का, एज वेल एज यू शुड ट्राई योर बेस्ट कि आपके आसपास या सराउंडिंग में कोई भी अगर ऐसा करता है देन यू शुड ट्राई कि वो लोग भी ऐसा ना करें, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द साइंस कि एक पर्सन और सिग्नल्स कि एक पर्सन ड्रग या अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है. फर्स्ट इज उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, ही और शी विल लैक इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, और वो अपने फैमिली मेम्बर से आइसोलेटेड रहेगा, वो अकेले अकेले रहना पसंद करेगा और उसका बिहेवियर भी बहुत एग्रेसिव हो जाएगा, वो बात बात पे झगड़ा करेगा. और शी विल लैक इंटरेस्ट इन हॉबीज़, वो मतलब सोसाइटी से वो दूर जाना चाहेगा, ओके. ही विल लाइक टू एन्जॉय हिज ओन कंपनी. Changing in sleeping and eating habits, fluctuation in weights. So these are very dreadful effects, isn't it? Now how all these things can be prevented? कैसे इसे prevent किया जा सकता है? First is avoid undue peer pressure. अगर आपका फैमिली या आपके सॉरी नॉट फैमिली, अगर आपके फ्रेंड्स आपको फोर्स करते कि चलो हम साथ में ड्रिंक करते स्मोक करते, देन यू शुड अवॉइड दोज काइंड्स ऑफ peer pressure. Next is educating as well as counseling to face problems, stress, to accept failure. बहुत टाइम क्या होता है कि बहुत लोग लाइफ में फेलर जब मिलता है, कुछ भी लाइक जॉब टेंशन, फैमिली प्रॉब्लम, एनीथिंग, दे उनका नेक्स्ट क्या होता है कि नहीं, इफ़ आई ड्रिंक और स्मोक मे बी मेरा स्ट्रेस थोड़ा कमता है. बट इट इज़ नॉट. यू शुड ट्राई टू एक्सेप्ट योर फेलर, एंड क्योंकि फेलर के बाद ही तो सक्सेस होता है ना. सो हम जब फेलर फेस करते हैं उसके बाद ही हमें सक्सेस महसूस होता है. सो वी शुड ट्राई टू फेस आवर, एक्सेप्ट आवर फेलर, एंड वी शुड इम्प्रूव आवर सेल्फ, ताकि हमारे फ्यूचर को हम और ब्राइट बना सके और ये ड्रग या अल्कोहल के रास्ते पे हम ना जाए.
नेक्स्ट इज यू कैन टेक योर हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स एज वेल एज योर पीयर्स. अगर आपके कुछ अच्छे फ्रेंड्स हैं यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम देम एज वेल एज यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स, बिकॉज पेरेंट्स कभी आपको ये सजेस्ट नहीं करेंगे कि नहीं बेटा स्मोक करो, नहीं बेटा अल्कोहल कंज्यूम करो, नेवर. Next is professional and medical help. There are some counselors as well. You can take their help as well. So that's all for this particular and important topic, that is drug and alcohol abuse. So you should try your best to eradicate this problem from our society. Being an educated person, हमें ये करना चाहिए कि नहीं? Yes or no? Okay, so that's all for today, and I have a task for you people, that is you should write down the definition of two terms, that is addiction and abuse, and show it to me. So that's all for today. Go through the lecture properly and study well. Thank you.